I would like to call upon our respected Dr. Monica Ma'am, the creator of Human Character and navigator to this flagship of knowledge, to present the preface of school's achievements, the school report. So please give a huge round of applause for Monica Ma'am. Thank you, Khushbu. So, what a wonderful afternoon now it is, and it is really a great pleasure to represent our school annual function. There are lots of activities to be tell here for report reading, but I will really cut short because I would like our guests to speak and then we will hear. बहुत कट शॉट छोटा छोटा सा मैं ग्लिम्स दूंगी. So we started our school news session with Father's Day celebration. I hope we all remember. बच्चों के साथ में आप सब ने Father's Day खाना बनाया था. And the highlight was that all the moms sat and enjoyed the food made by their kids and husbands. That was the wonderful moment we had on Father's Day. Previously, before that, we had a mother and kid painting workshop जहाँ पर हमने श्वेता मैम को बुलाया था, and that was a Fevicryl workshop which our mothers enjoyed along with the kids. That was a wonderful bond, creative bond done by our moms and kids. Followed by we had Rakhi celebration, we had Janmashtami celebrations. Looking forward, whenever I think about a creative school, a unique school, I find that education is incomplete without skills. We can read ABCD, we can learn all the academics, but there is a difference between education and wisdom. I'll just give one example. I hope कुछ parents ने मुझसे example सुनी भी होगी. We all know that tomato is a fruit. Tomato क्या है? Fruit है. So हमको academics में education में यही सिखाते हैं, tomato is a fruit. But the wisdom is, what is wisdom? That we don't put tomato in fruit salad. हम fruit salad में tomato नहीं डालते. So education आपको सब कुछ देता है, but how you apply, that is wisdom. And that comes through experience, that comes through when you listen to others, when you read books, when you go through lot of literature, when you have lot of exposure, when you enjoy lot of opportunities. One more quote I would like to say here, that we should follow one practice. कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो. Gurudev has said this. कुछ जान के चलो और कुछ मान के चलो. Now what does this mean? This means that if somebody is telling you this is sweet, तो आप उसको मान के चलने की बजाय उसको टेस्ट कर लो और फिर उसका टेस्ट जान लो, समझ लो कि दिस इज स्वीट. बट किसी ने सामने वाले ने बोला है कि ये टॉक्सिक है, ये जहर है. अब यदि इस समय भी हमको जानना होगा, सो व्हाट विल हैपन? सो इस सिचुएशन में व्हाट वी शुड डू? हमको मान के चलना चाहिए कि ये जहर है. So when some elder people, some experienced people, some senior people, they are sharing their experiences, they want you to follow certain things. So for certain things, आप जान लो because you have lot of information. But कुछ चीज़ों पे प्लीज़ blindfolded होकर experience और senior लोगों पर भरोसा कर लेना चाहिए. यही अक्लमंदी है. So through all this year, through all this session, my only effort was to give that skill, to give that wisdom to our kids. I know when we say wisdom and kid, तो बड़ा अजीब लगता है कि छोटा सा तो बच्चा है, क्या wisdom. But आप यदि देखेंगे अपने बच्चों को, इस उम्र में भी they share wisdom. They are so much aware, they are so much focused. आपकी बोलती बंद करा देंगे. So what does that mean? They are developing in holistic manner. यदि बच्चा सिर्फ पढ़ता है, यदि बच्चा सिर्फ ABCD ही बोल पा रहा है, so that means उसकी education incomplete है, अभी wisdom
दूर है. So parents, my effort and our team effort is always for developing that holistic human being out of them. These kids come raw. उनको पॉलिश करना, उनको ह्यूमन बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है. एंड who plays major role? Only parents and teachers. So let us all, both of us, be on the same platform towards holistic development. And in this session, we have introduced new thing, that is skill development. Every second week of the month, full week हम skill development को dedicate करते हैं. और उस सेशन, उस 1 वीक वाले सेशन में हम हर महीने बच्चों को अलग अलग स्किल सिखाते हैं. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिड गार्डनिंग, बच्चों से सैपलिंग्स हमने प्लांटेशन करवाया था. उसके बाद हमने राखी मेकिंग. सो वी वांट टू टेल द किड्स, वॉट एवर यू आर मेकिंग, आप कंस्ट्रक्शन तो कर ही रहे हो, आप क्रिएटिविटी कर रहे हो, आप एफर्ट डाल रहे हो, सो वाई नॉट इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई नॉट वी चैनलाइज दिस एनर्जी फॉर सम आउटपुट. हम सब घर में करते हैं क्रिएटिव थिंग्स, एवरीबडी ऑफ अस डू. इवन जब हम किड्स थे हमने भी बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट करा. ऐसा नहीं है कि हमारा बचपन बिना आर्ट एंड क्राफ्ट का गया है, बट दैट टाइम वी वर नॉट हैविंग दैट डायरेक्शन, दैट opportunity or that awareness given by elders कि आप इसको सेल भी कर सकते हो. सो वॉट वी डिड दिस ईयर, हमने सब बच्चों से राखी बनवाई. बनाते हैं बच्चे आर्ट एंड क्राफ्ट में, क्रिएटिव राखी बनाते हैं. एंड देन वी हेल्ड एन एग्जीबिशन कम सेल ऑन रंजीत हनुमान रोड, वेयर आर किड्स सोल्ड ऑल द राखीज. I know it was only 5 or 10 rupees, but they really earned that money. And this earning will give them confidence. पेरेंट्स, आप अभी विश्वास नहीं कर पाओगे, आपको भी शायद सामने उतना दिख नहीं रहा होगा क्योंकि एकदम खुल के बच्चे नहीं आ रहे हैं, बट ग्रेजुअली इनडायरेक्टली जो उनका डेवलपमेंट हो रहा है, इट इज़ रियली गोइंग इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन. दिस कॉन्फिडेंस, ये जो अभी से कॉन्फिडेंस डेवलप कर रहे हैं ना, दिस इज़ बियॉन्ड एनी वर्ड्स. देन आफ्टर दैट वी टॉट देम दिया मेकिंग. उसके बाद हम लोगों ने स्टिचिंग, सिलाई इंट्रोड्यूस करी. नाउ विद दीज किड्स स्टिचिंग इज सच अ टास्क, बिकॉज बड़े लेडीज़ भी शायद घर में स्टिचिंग को थोड़ा सा साइड ही रखते होंगे कि कौन टाइम लगाए. बट व्हेन आई सॉ अ 4-year-old बॉय डिज़ाइनिंग क्लोथ्स, ही इज़ अ फैशन डिज़ाइनर. एक मीन्स फैशन शो में वो मॉडल्स के लिए डिज़ाइनिंग करता है, ड्रेसेस सिलता है. 4-year-old बॉय. व्हेन आई सॉ दैट वीडियो, इट वाज अमेजिंग. मीन्स आई वाज ऑल्सो इन अ शॉक कि कैसे एक 4 साल का बच्चा सिलाई कर सकता है. बट व्हेन आई कंटिन्यूसली सॉ हिज वीडियोज, इट वाज रियली अमेजिंग, क्योंकि उसकी मदर वाज देयर एट द बैक. शी वाज सपोर्टिंग हिम एट ऑल द टाइम. शी ब्रॉट दैट स्मॉल स्टिचिंग मशीन फॉर हिम. बाकायदा उसको स्टैंड पे खड़े रख के उनसे सिलवाती थी. एक मैनिक्विन लाया हुआ था जिसके आसपास वो बच्चा रैप करके डिज़ाइन करता था. सो फ्रॉम देयर आई गॉट द आइडिया, जब फॉरेन का छोटा सा 4 साल का बच्चा सिलाई कर सकता है, हम लोग तो इंडियंस हैं, वी हैव दैट इन आवर ब्लड, सो व्हाई नॉट वी. एंड दैट्स व्हाई आई इंट्रोड्यूस स्टिचिंग. मेरे लिए भी बहुत टफ डिसीजन था ये, बिकॉज मीन्स बच्चे की सेफ्टी प्राइम होता है. सो यदि स्टिचिंग करते वक्त उनकी उंगली में कुछ हो जाए, कभी कुछ लग जाए, सो इट वॉज टफ डिसीजन. बट आई सेड नो, माई टीचर्स विल बी देयर विथ ईच एंड एवरी किड, एंड हम बहुत संभाल के करेंगे. एंड यू विल नॉट बिलीव, हमारे बच्चे ना मैम सीधी सिलाई कर लेते हैं. सो अभी से जब वो इतना एक स्किल को ऑप्ट करने में सक्षम है, तो सोचो हम कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं. वी रियली, हम उनको ना बहुत हल्के में लेते हैं, क्योंकि वो घर में छोटे हैं. आप सबकी सुनना उनका धर्म है, नहीं सुने तो फिर हमारा भी थोड़ा सा कुछ धर्म आगे आ जाता है. सो व्हाट वी डू, वी अंडर एस्टिमेट देम. हमारी सोच उनका पोटेंशियल नहीं समझ पाती है. सो थ्रू दिस स्किल वर्कशॉप, माई आइडिया इज टू जनरेट दैट अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स ऑल्सो, कि आपके बच्चों में देखो कितना पोटेंशियल है, आपके घर में ही एक जेम है, और
आप उसको शायद समझ नहीं पा रहे हो. सो थ्रू ऑल दीज सेगमेंट्स we are not only developing confidence among kids, but we are also showing the potential of the kids to their parents as well, कि आपके बच्चे में बहुत यूनिक क्षमता है. Followed by this, one more very great activity ma'am we did. आई नो मैं खुद ही ग्रेट बोल रही हूँ बिकॉज हमारे लिए भी ये बहुत ज़्यादा एफर्ट वाला टास्क था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से इतनी चीज़ें बनवाना. सो हमने बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट आर्टिकल्स बच्चों से बनवाए कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द सेशन. एवरी किड यूज टू मेक सम और द अदर आर्टिकल विच वॉज मेड आउट ऑफ वेस्ट मटीरियल. सो वी गेव देम द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल. एंड एट द सेम टाइम अगेन जब हम कुछ बना रहे हैं तो उससे क्यों ना एक आउटपुट लिया जाए. सो दे मेड दी आर्टिकल्स एंड देन वी अगेन, हम रंजीत हनुमान रोड पर विश्राम बाग के सामने खड़े थे हमारी एग्जीबिशन लेकर. आर किड्स सोल्ड ऑल दी आइटम्स. दे वर लाइक प्रोफेशनल्स, दोज हु वर सेइंग कि हमारा प्रोडक्ट ये है, हमने इसको बड़ी मेहनत से बनाया है, आप प्लीज़ परचेज करो. We have one देवस, उसकी मम्मा यहीं बैठी है. I want to highlight that boy through this exhibition that he means 4-5 जो चीज़ हम सिखाते हैं वो तो उसने बोली, बट 3-4 सेंटेंस उसने इतने अलग बोले जो मेरे बियॉन्ड इमेजिनेशन थे, मेरे भी. What he said, visitors were coming, तो वो उसका आर्टिकल देख के वापस जा रहे थे गार्डन में. सो उसने बोला कि आप ये परचेज करके जाओ. सो वॉट दे सेड, हम ना अंदर से घूम के आते हैं फिर आपसे ले लेंगे. नहीं, आप अभी लेकर जाओ. सो अगेन दे सेड, फिर हम वहाँ पे कहाँ रखेंगे बेटा, हम आकर आपसे ज़रूर ले लेंगे. ठीक है, आप आर्टिकल यहाँ रख दो, आप पैसे दे दो और फिर आके ले लो. कैन यू इमेजिन अ 4-year-old boy? सो यू नो वेयर दीज पीपल विल लैंड. अभी और ये सब चीज़ें हमको कब पता चलती हैं, जब हम उनको इस तरीके के मौके देते हैं. सो बिल्कुल बेहिचक, मीन्स इवन मेरे लिए ये सेशन लर्निंग वाला था, बिकॉज मैंने नहीं सोचा था कि ये स्किल डेवलपमेंट का जो वीक है वो इतना प्रोडक्टिव होगा विथ सच स्मॉल एज. सो वॉट वी कैन डू इज़ वी कैन गिव देम फर्दर मोर अपॉर्चुनिटीज़. देखिए, ABCD तो जीवन भर सीखना है, पढ़ाई जीवन भर करनी है, बट नाउ अ डेज द टाइम हैज़ चेंज. मोदी जी हिमसेल्फ हैज़ लॉन्च्ड Skill India. So what does that Skill India means? कि we should become job givers. We should have our own enterprising skills. And अभी जिस ज़माने में हमारे बच्चे 4 साल के हैं, आज से 20 साल बाद, just imagine how कट्टर competition that time will be. So क्या हर बच्चे को जॉब मिलेगा? So why not teach them enterprising skills from right now? And you know, इस समय हमको झिझक होती है हम कैसे बाहर खड़े हों, बच्चों को कोई झिझक नहीं है. सो ये चीज़ ना उनकी इस कैरेक्टरिस्टिक को भुनाने का टाइम है कि उनको कोई शर्म नहीं है, कोई झिझक नहीं है. दे आर बिंदास. सो गिव देम अपॉर्चुनिटीज़. बाहर जितना छोड़ सकते हो उतना छोड़ो. दीज पीपल विल कम आउट रियली like wonderful total complete human being. So our task is just to have a holistic development with both part of the brain development, because right part बहुत कम एक्सप्लोर होता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम में. सो वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट राइट पार्ट of the brain development. So I would now thank all of my parents, ma'am. We have really a wonderful team. शायद पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना जो आज मैं यहाँ खड़ी हूँ मैं इतनी बातें नहीं बोल पाती, बिकॉज फॉर एवरी एक्टिविटी पेरेंट्स को घर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आप बच्चों के दिमाग में ये फीड करते चलो, बिकॉज almost 18 hours, 19 hours the kids are with them. So I am really thankful to you from the core of my heart that बस हम लॉन्च करते हैं एंड पेरेंट्स हमको सपोर्ट करते हैं, एंड दैट्स वाई वी आर हियर विथ मीन्स आई कैन रियली फील प्राउड that we have given full efforts and our kids are really doing wonderful tasks. I hope you all will agree with that, and wherever we are lacking we really need your valuable feedback so that we come up with those छोटे छोटे जो gaps रह रहे हैं उसको हम cover कर पाएँ, and both of us can enjoy total development of our shining stars. So thank
you, dear parents. Thanks a lot for making our school and for appreciating our team, appreciating our efforts. Thank you so much. Thank you, ma'am. Our school has proved its strength in every field.